Today there's a discussion going on about the Ministry of HRD and Education Policy is being discussed here. And we must all compliment our journey since independence to today as to how education in our country has evolved. And not only evolved, but has shaped the destiny of our country till now and will be the most important factor as we go along in our onward march. And I also would like to compliment the government and especially the Prime Minister's vision for giving very special emphasis not only to education but more importantly to women, girls' education as well as skill development, which eventually will be taking this country and the next generation and generations to come forward and giving them strength to be able to stand on their own two feet. So education, of course, is the most important pillar in any child's evolution and development. And the government's policy, the NEP, and other initiatives have actually been bearing fruit. I would like to just emphasize one thing, sir, that all states, I come from Maharashtra, which has been one of the most, I would say, forward-looking in terms of education. My colleague here has been the Chief Minister also of the state. We all focus on education being affordable. Therefore, all our children in villages or even in big cities went to municipal schools, they went to Zilla Parishad schools, and so on. But over a period of time, whether it be Maharashtra or many other states in the country, have not been contemporary enough to change according to the needs of the time. And as a consequence, most of the municipal schools and Zilla Parishad schools, they impart education, of course, in the language of the state, which is absolutely necessary, but they have not kept pace on par with the other changes which are taking place in this field of education. Now, whether we like it or not, because everybody is so passionate when it comes to language. In Maharashtra, people will obviously be fighting for Marathi. In Tamil Nadu, we always see that people fight for the Tamil language, and rightly so, nothing wrong with that. It is a language which is our ownership, coming from a particular state. But at the same time, the world is changing. Today, I dare say, and I should say this because most of us will have experienced it. आप सब जिला परिषद स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल में भर्ती नहीं हो रही है. किसी की क्लास में 10 बच्चे, 20 बच्चे हैं. और आप अगर वही छोटे से गांव में, जहां फ्री एजुकेशन है, और जहां आप CBSE स्कूल उसी गांव में, शहर में होगी, वहाँ 40,000, 50,000 रुपया साल का वहाँ पर फी भर के वो स्कूल पूरी फुल रहती है. वहाँ की सिफारिशें लोगों को लगानी पड़ती है. What I am trying to say is that somewhere there is a need to tweak the educational model, and I would say to the central government, प्रधान जी सुनिए, आपको भी ज़रूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप जितना कर सकते हो तो करेंगे ही, पर राज्यों को भी ये प्रोत्साहित करिए कि अपने अपने वहाँ पर जो माध्यम है और जिस तरह से वहाँ शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ परिवर्तन करें और पूरे देश की और दुनिया की ज़रूरत के हिसाब से उसका आधुनिकीकरण करें. अगर वही बच्चा उसी गांव में जिला परिषद या म्युनिसिपल स्कूल में पैसा फ्री होते हुए भी नहीं जा रहा है और CBSE में जा रहा है, मतलब कहीं तो उनके माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को आगे बढ़ना है. तो CBSE की स्कूल्स जो आज पॉपुलर हो रही, इस तरह से ज़्यादा स्कूल्स पूरे देश में राज्यों के माध्यम से आप करिए, उन्हीं स्कूल्स को आप बदलवाइए और उसको आगे बढ़ाने का आप काम करिए.
मैं थोड़ा समय यहाँ से है, कोई आप उस इन्होंने इशारा तो नहीं मुरली, वी कैन टेक सम मोर टाइम, फ्यू मिनट्स. यू आर माई फ्रेंड, यू आर ऑलवेज माई डियरेस्ट फ्रेंड. यस. दूसरा सर, मैं वो निष्पक्ष ही हैं. दूसरी बात सर, ये खुद ही बीच में खड़े हैं ना. दूसरी बात मेरा निवेदन ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे आज पूरे विश्व में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं. आप अगर पूरे हिसाब लगाएंगे तो चाहे वो रेगुलर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, इसके लिए हमारे शायद कई लाख बच्चे विदेशों में आज पढ़ रहे होंगे. ऐसे ऐसे मुल्कों के जहां पर अदरवाइज हम नाम नहीं सुने होंगे, वहां पर भी हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं. हम लोगों को भी हमारी कहीं ना कहीं सोच बदलनी होगी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा इस मामले में खींचतान कर लेते हैं कि हम सही रास्ता कई बार हम भटक जाते हैं. आज विश्व में हमारे बच्चे फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करके, माँ बाप की लाखों करोड़ों की पैसा खर्चा करके वहाँ जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं, और बहुत सारे आते भी हैं वापस, बहुत सारे वहाँ रह जाते हैं. और वही उच्च शिक्षा की प्रणाली विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के साथ चाहे टाई अप करिए, चाहे उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ तैयार करिए, पर हमारे यहाँ शिक्षा बाहर जाकर प्राप्त करने के बजाय भीतर से ही हमको मिल जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. इसके लिए बहुत सारी कोई लोकल इश्यूज रहते हैं, इसको भी कहीं ट्वीक करने की ज़रूरत है. और लास्ट में, आज हमारे देश में सभी भाषाओं के प्रति हमको गर्व है, होना भी चाहिए. क्लासिकल लैंग्वेजेस में हमारे मराठी का भी अभी समावेश करने में आया है. अभिजात भाषा हमारे मराठी को दर्जा मिलने की वजह से हमारे महाराष्ट्र में हम लोग सब बहुत गौरवान्वित समझते हैं. हमारी भाषा के प्रति सभी लोगों का इतना सम्मान है, ये भी जानकर बहुत खुशी होती है. साथ साथ में सभी लैंग्वेजेस को इस तरह से लोकल लेवल पे जितना हम उनको महत्व दे सकते हैं, साथ साथ में बच्चों को शिक्षा नीति में आज के और भविष्य के आधुनिक विश्व के वो नागरिक कैसे बन सकते हैं, भारत के अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत गहन विचार करके नई नीति और इसमें सुधार करने की कोशिश करना चाहिए. और स्किल डेवलपमेंट, आज लाखों लोग जो गल्फ में काम कर रहे हैं, ये कोई बहुत शिक्षित नहीं है लेकिन स्किल्ड हैं, और वही लोग आज 150 बिलियन हमारे भारत को हर साल रेमिटेंस करते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, जो इस देश के फाइनेंशियल और फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. और उतने ही लोगों को रोज़गार यहाँ के बजाय कहीं भी प्राप्त हो रहा है, केवल अपनी स्किल के आधार पर. तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम महत्व दें, ये मैं हमारे HRD मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को मैं निवेदन करते हुए फिर से उनके सभी अच्छे प्रयासों में हमारा पूरा सहयोग है, और वो अवश्य हमारे देश के भावी नागरिकों को इससे बेहतर शिक्षा के प्राप्ति के लिए काम करेंगे. यही मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ. प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ. धन्यवाद.